of the, this is an interesting question. Find the number of arrangements of the letters in the word Solapur. Find the number of arrangements in the letter of the letters in the word Solapur. So that consonants and vowels, consonants and vowels are placed alternately. They are placed alternately. Okay, so I request you all to be attentive, students. See, now this question is all about the arrangements. So now, as few of you are absent for the last lecture, I will give you few ideas which will reconnect you to the topic. See, this is, as you notice in the question, what does it say? It says find the number of arrangements. Now, the moment you read arrangements, arrangement is what? Arrangement is everything related to permutation. Okay. Now, what is permutation? Permutation is selection where order is important. Selection where order is important. That is permutation. Selection where order is important. Very good. Now, what are they saying? They are saying find the number of arrangements of the letters in the word Solapur. Now, if you check here, the word Solapur, see, in the word Solapur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 letters. So I'll write here, I will begin with writing, there are 7 letters. There are 7 letters in the word Solapur. Okay. Now try to get this. 7 letters in the word Solapur. This is important. If I have S O L A P U R, see, 7 letters. And you know, these 7 letters, when you are writing Solapur, now this itself is, try to understand, this itself is a kind of arrangement of these 7 letters. Solapur. If I see for these letters, Solapur itself is an arrangement where you have Solapur. Suppose somebody writes Solapur, then what it becomes? Soalpur. Now, sometimes you may be able to read it, sometimes you may not be able to read it. See, Soalpur. Soalpur is also a kind of arrangement of these letters. Soalpur. Now, this way, how many arrangements I can have if there are no conditions? If there are no conditions given. See, as such, you know, here they give you condition. What the condition is, so that consonants and vowels are placed alternately. The consonants and vowels are placed alternately. Here the condition is one consonant, one vowel, one consonant, one vowel, like this. If there are no conditions given, how many arrangements I can have? If there are no conditions given, how many arrangements I can have? See, if there are no conditions given, then remember, students, that there are 7 letters and you have to arrange these 7 letters amongst themselves. 7 letters, you are arranging all 7 letters amongst themselves.
and this can be done in 7p7, that is 7 factorial ways. Remember students that when you have certain number of objects, and you are taking all of those objects and going for the arrangement. When you are taking all of those objects and going for the arrangements, then you call that as arrangement of the objects amongst themselves. Now here what is happening, इसमें क्या हो रहा है, सोलापुर में जितने भी लेटर्स हैं सबको अरेंज करना है। तो अगर सबको अरेंज करना है और कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करना है तो 7 लेटर्स है और 7 को आपस में अरेंज करना है, मतलब सबको लेके अरेंज करना है, उसको 7p7 बोलेंगे। और 7p7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7p7 का आंसर होगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 5040, ये होता है 7 फैक्टोरियल। गिव मी 1 मिनट। ये होता है 7p7 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, देखो 7p7, ये जो 5040 अरेंजमेंट में लिख रहा हूं, इसमें सारे अरेंजमेंट्स आएंगे, उसमें से सोलापुर ये भी एक अरेंजमेंट आएगा, ये भी अरेंजमेंट आएगा। लेकिन उन लोगों ने क्लियरली बोला है क्या, उन लोगों ने बोला है कि अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट और वाल जो है वो एक के बाद एक होना चाहिए, ऑल्टरनेटली प्लेस्ड होना चाहिए। बोले तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो कहने का मतलब ऐसे होना चाहिए। देखो कितने तुम्हें लिखना पड़ेगा, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। देखो पहले वाल्स कितने, देखो 1 2 3, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयर आर 3 वाल्स and 4 consonants, ठीक है। Vowels are, what are vowels? Vowels are O, A, U, and consonants are S, L, P, R. Consonants are S, L, P, R, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो यहां पे वो लोगों ने क्या पूछा है, उन लोगों ने पूछा है कि अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक वाल एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो इसमें टोटल 7 लेटर्स हैं, तो जब मैं अरेंजमेंट करूंगा तो सीधी सी बात है कि 7 प्लेसेस होंगे, यस, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये देखो, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन। अगर समझो तुम्हारे पास में 4 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है ना, तो जो अरेंजमेंट होगा उसमें एक कॉन्सोनेंट एक वाल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट रखता हूं मैं, ध्यान से देखते जाओ। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट रखा तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा। देखो ये कॉन्सोनेंट्स हो गए 4, और वाल्स कहाँ पे होंगे, ये वाल्स होगा। देखो तो फिर वाल्स जो होंगे इधर होगा, इधर होगा और इधर होगा। तो ये करेक्ट तुम्हारा अरेंजमेंट है। वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें कॉन्सोनेंट्स एंड वाल्स आर पुट ऑल्टरनेटली। अच्छा देखो, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स रखना है मुझे,
तो मतलब कि यहाँ पे जैसे समझो यहाँ पे मैंने रख दिया S, फिर यहाँ पे L रख दिया, यहाँ पे P रख दिया, यहाँ पे R रख दिया, देख रहे हो SLPR। यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने रख दिया UAO, देख रहे हो ऐसा SULA, सुलापोर। देखो ये बराबर है, दिस इज वन सच रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। वन वाल वन कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने होंगे? ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किया है, आई स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट एंड देन कॉन्सोनेंट वाल लाइक दिस, is it possible for us to start with a vowel? Yes, sir. let us check let us check। तो मैं देखो, मैं वाल से स्टार्ट करता हूँ, वाल वाल वाल, तीन ही वाल है, देख रहे हो तीन ही वाल है अपने पास ना, एक दो तीन, तीन ही है, एक दो तीन, तो मतलब तीन ही जगह आ सकता है। तो फिर कॉन्सोनेंट यहाँ पे आएगा, देखो कॉन्सोनेंट 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 और कॉन्सोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो अरेंजमेंट आ रहा है, ये अरेंजमेंट इज नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो अरेंजमेंट है ये तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत कॉन्सोनेंट आ रहा है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कॉन्सोनेंट्स एंड वाल्स आर प्लेस्ड ऑल्टरनेटली, कॉन्सोनेंट्स एंड वाल्स आर प्लेस्ड ऑल्टरनेटली, तो मतलब ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि हमें जो आंसर निकालना है उसमें, जो हमें अरेंजमेंट्स निकालना है उसमें कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होगा। बोलो सबको ये समझ में आ रहा है? बोलो सबको ये समझ में आया? कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होगा, वाल से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वाल से स्टार्ट होगा तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फुलफिल नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो वी विल राइट द आंसर एज फॉलो। वी विल राइट देखो, in order to have arrangements, in order to have arrangements with consonants and vowels placed alternately, we will have to begin the arrangement, we will have to begin the arrangement with a consonant, okay? So see here, consonant, consonant, consonant and consonant. So I will write that is। देखो अगर ये सब प्रॉब्लम MHT CT में आता है तो ये जितना भी मैं बोल रहा हूं और जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें सीधे आंसर के लिए जाना है। यस, ऐसा ही होता है, ये सब लिखना नहीं होता है वहां पे सीधा आंसर के लिए जाना होता है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज the odd places will be occupied by consonants, देख रहे हो 1 3 5 और 7। अब ध्यान से देखो, तो चार कॉन्सोनेंट है और अपने पास में 4 प्लेसेस है, तो 4 कॉन्सोनेंट को 4 प्लेस पे अरेंज करना है, दैट इज 4p4, दैट इज 4p4। तो मैं क्या लिखूंगा, these, देखो मैं यहां पे लिखूंगा these
these four consonants can be arranged in four places in 4p4 equals to 4 factorial different ways. Consonants can be arranged in four places in 4p4, 4p4, 4 factorial different ways. 4p4, 4 factorial different ways. हो गया? अच्छा मुझे बताओ, काम खत्म हो गया क्या? काम खत्म हो गया? जो उन्होंने बोला था हमने कर लिया पूरा, बताओ जो उन्होंने बोला था वो हो गया क्या? यस नो बोलो जल्दी। जो उन्होंने बोला था वो हो गया क्या? Sir. यस और नो? No, sir. So as we understand here that the remaining three places we are going to have the three vowels arranged. Okay, then only the whole thing will be complete. So here we have three vowels. See here, A, O, and U. A, O, and U. So what I will say the three vowels can be arranged in three places in 3p3, that is 3 factorial different ways. I will write here the three vowels. See here, I will write the three vowels can be arranged. The three vowels can be arranged in three remaining places in three remaining places, and you know those remaining places are nothing but the even places. Okay, three remaining places in 3p3 equals to 3 factorial different ways. Okay, now tell me students, if we have arranged the four consonants and the three vowels, now three vowels are also arranged. Tell me, is the work done now? Have we completed the work? Tell me. Yes, now the work is complete. So what I will say therefore, by fundamental principle of counting, by fundamental principle of counting, total number of required arrangements. How many are there? Tell me now. See, you have to, as per the rule, as per the law, see what you did. What did you do here? You arranged the consonants and you arranged the vowels. See, between these two arrangements, you are getting and. So what you will do here, you will have to multiply. The total number of arrangements will be, see here, 4 factorial into 3 factorial. 4 factorial is 24. So 24 into 6, that is equal to 144. How many such arrangements are possible? For the letters of the word Solapur, 144. तुमको 144 ऐसे arrangements मिलेंगे. तुमको 144 ऐसे arrangements मिलेंगे जिसमें एक लेटर कॉन्सोनेंट होगा, फिर वॉल होगा, कॉन्सोनेंट आएगा, वॉल होगा, कॉन्सोनेंट होगा, वॉल होगा, ऐसे होगा. अच्छा, इसमें हम लोगों ने चेक किया कि कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होगा. कॉन्सोनेंट वाल कॉन्सोनेंट, इधर से कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होगा. अगर तुमने सोचा कि मैं वाल से स्टार्ट करता हूं, वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? हमने देखा कि लास्ट में फिर कॉन्सोनेंट हो जाता है. ओके, चलो इसको अभी जल्दी से
Question number 16 on page number 55, exercise 3.3, it says, in how many ways can 5 different books be arranged on a shelf if there are no restrictions? So what you have to understand is, see, there are five books that you have, 5 books of different. So see here, this is different 5 books. So say this is one book. Then you have, this is book number 2. See, they are all different books. Then you have book number 3. Book number 3 you have. Then you have book number 4. And here you have 5th book. This is book number 5. So I'll write here the numbers 1, 2, 3, 4, 5. 5 books are there. They're saying in how many different ways these 5 books can be arranged. In how many different ways can the 5 books be arranged if there are no restrictions? Try to understand. When you have no restrictions, ओके, यहाँ पे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, ध्यान से देखो, और इस चीज को अपने वर्ड्स में लिख लो कहीं पे, क्योंकि आगे ये काम में आएगा। देखो, ये 5 बुक है और मुझे इसको अरेंज करना है। अब अगर मैं बोलूं कि ये पांच बुक को मुझे आपस में अरेंज करना है, वो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर किसी ने मुझे बोला, जैसे कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, ओके, यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं, S1, S2, S3, S4 और S5, और यहाँ पे 5 चेयर्स है। ओके, यहाँ पे 5 चेयर्स है, 1, 2, 3, 4 और 5 चेयर्स है, ठीक है ना। अभी ये 5 स्टूडेंट को मुझे 5 चेयर में अरेंज करना है। ये चेयर्स हैं, चेयर्स, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5। ये चाहिए तो ये कहीं पे लिख लो, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में जब आती हैं और अपना टाइम हो चुका होता है, काफी दिन हो गया होता है पढ़ के, तो ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। देखो, अगर मैं बोलूं ये 5 स्टूडेंट को 5 चेयर्स में अरेंज करना है, इसका मतलब, और जब मैं बोलूंगा कि ये 5 बुक्स को आपस में अरेंज करना है, इसका मतलब एक ही है, एक ही है। अगर मुझे 5 स्टूडेंट्स को 5 चेयर में अरेंज करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इन पांचों को इन 5 जगह पे अरेंज करना है। और ये क्या है, 5 ऑब्जेक्ट्स लिया, 5 ऑब्जेक्ट्स दिया है और 5 के पांचों को यहां पे अरेंज करना है, तो ये 5p5 5 फैक्टोरियल होगा। ये 5p5 5 फैक्टोरियल होगा। और अगर यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, यहां पे इस वाले क्वेश्चन में जहां पे बुक्स दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है ना कि ये बुक्स को इस जगह पे अरेंज करना है। क्या बोल रहा है, ये बुक्स है शेल्फ में आगे पीछे अरेंज करना है, मतलब उनको आपस में ही अरेंज करना है। तो हकीकत में देखा जाएगा तो तुम जहां पे अरेंज कर रहे हो वहां पर भी ये 5 बुक तो 5 जगह ले रही है ना भाई। जैसे ये स्टूडेंट यहां पर आके बैठेंगे, तो जब ये इधर बैठते हैं तो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई, ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स भी जब आपस में अरेंज होंगे आगे पीछे इधर उधर, तो ये भी तो जगह लेंगे ना उधर। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है, ये याद रखना। तो यहाँ पे देखो, जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये 5 बुक जो है शेल्फ में कितनी तरह से अरेंज होंगे। बहुत सिंपल है, 5 बुक है, आपस में अरेंज करना है, मतलब 5 के पांचों को लेना है। जब जितना ऑब्जेक्ट्स रहता है और सब ऑब्जेक्ट्स हम लोग लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरेंजमेंट अमंग्स्ट देमसेल्व्स, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट अमंग्स्ट देमसेल्व्स। तो 5 ऑब्जेक्ट है, 5 के पांचों को अरेंज किया है 5p5 5 फैक्टोरियल वेज। पहला वाला आंसर आ गया 120। 5 बुक्स, इसमें किसी को कुछ डाउट है? 5 बुक्स कैन बी अरेंज्ड amongst themselves in 5p5 5 factorial different ways।
5 books can be arranged amongst themselves in 5p5 5 factorial different ways. कुछ सोचना नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हो गया काम खत्म. ओके, तो पहले वाले का आंसर लिख लो जल्दी से. फर्स्ट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. देयर आर नो restrictions. There are no restrictions. इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? इसका स्टेटमेंट ऐसा लिखेंगे, 5 बुक्स. इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इसका स्टेटमेंट लिखेंगे 5 books can be arranged amongst themselves in 5p5 equals to 5 factorial different ways. याद रखना जितना ऑब्जेक्ट दिया है सबका सब अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल होगा. 5 फैक्टोरियल होगा. तुम जब मॉल में जाते हो या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो तुम देखते हो वहां पे जो तुम ऑब्जेक्ट्स खरीदते हो वो बार कोड लगा होता है, तुम देखते हो ना. और वो जो काउंटर पे बैठा रहता है या बैठी रहती है वो क्या करती है? वो सिर्फ वो प्रोडक्ट उठा के और ऐसे रखती है, सामने ऐसे रखती है, और जैसे ही रखती है वो तुरंत उस बार कोड से वो रीड होके और उसका प्राइस, उसका वो प्रोडक्ट का नाम, उसका डेट, सब कुछ आ जाता है. अब तुम समझ सकते हो कि वो बार कोड होता क्या है. वो कुछ नहीं रहता है, वो पैरेलल लाइंस रहते हैं ऐसे. एक थोड़ा ज्यादा मोटा रहता है, एक पतला रहता है, डिफरेंट थिकनेस होता है उसका, डिफरेंट थिकनेस होता है, बस डिफरेंट थिकनेस. तो वो डिफरेंट थिकनेस ना अरेंज होता है आगे पीछे. मतलब जो सबसे ज्यादा थिक होगा वो समझो वो 0.5 mm का होगा, तो उससे पतला 0.045, ऐसे होता है. अभी समझ लो अगर 20 भी होगा, वो 20 तुम समझ सकते हो कि अगर सिर्फ 20 बार्स होंगे, वो जो बार कोड होता है अगर उसमें सिर्फ 20 लाइंस भी होंगे ना अलग अलग टाइप के तो 20 फैक्टोरियल हो जाएगा. 20 फैक्टोरियल मतलब समझते हो कितना है? उस मॉल में जितना भी सामान है उससे भी बड़ा नंबर है ये. और 20 लाइंस को डालने में कितना जगह लगेगा तुम सोच सकते हो. एक बार कोड जो चिपकाते हैं वो इतना बड़ा पेपर रहता है, इधर ऐसे चिपका देते हैं, हो गए 20 फैक्टोरियल. कैलकुलेट करो, ये 1 करोड़ के ऊपर जाएगा. आई सपोज, कम बोल रहा हूं मैं, बहुत जाएगा. दिस इज डन. अभी सेकंड देखो क्या बोलते हैं. नाउ द सेकंड वन दे से इज, look at the second one. The second one they say 2 books are always together. 2 books are always together. चलो, लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे. मैंने बोला था ये 2 टाइप का एक मेथड होता है, उन दोनों का नाम भी बोला था मैंने. कौन सा नाम था बताओ? किसको याद आ रहा है बताओ? अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारी याददाश्त कितनी तेज है. और अगर याददाश्त नहीं तेज है तो तुम रिवीजन करते हो कि नहीं नोटबुक खोल के, वो भी पता चल जाएगा. तुमको याद है मैंने बोला था गैप मेथड और टाई मेथड? याद आ रहा है ना? गैप मेथड और टाई मेथड. बेटा इसीलिए पढ़ना होता है, समझे ना? इसीलिए होमवर्क भी करना होता है. होमवर्क सीधा सीधा क्यों करने का? जो पढ़ा है वो रिपीट होता है. देखो 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर. अब समझ लो मैंने अरेंजमेंट किया. देखो ये मेरा जो बुक है, ये जो सबसे जाड़ा बुक है, ये समझो ये मेरा मैथ्स का बुक है, ठीक है. उसके बाद में ये जो बुक है ये मैथ्स की बुक है. ये वाली बुक जो है ये इंग्लिश की बुक है, और ये वाली बुक है हिस्ट्री की बुक है, ठीक है. अच्छा, अब इसके अलावा 2 बुक जो है वो मेरे पास एकदम से खास है. क्यों खास है? ये जो दोनों बुक है ना, ये दोनों बुक क्रिकेट की बुक है. क्रिकेट पे 2 बुक है, क्रिकेट है ना.
यस, ये दोनों बुक भी खास है क्योंकि ये दोनों बुक क्रिकेट की बुक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स की बुक है, देखो ये मेरे चॉइस की बुक्स है, मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट मेरे चॉइस का है। तो ये तो ठीक है भाई, ये तो सब्जेक्ट्स है, लेकिन ये जो है ये मेरे लिए खास क्यों है, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स की बुक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने सोचा है कि जब मैं इसको शेल्फ में अरेंज करूंगा तो ये दोनों बुक हमेशा साथ में ही दिखनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि देखो अभी ये क्रिकेट वन बुक है और ये क्रिकेट नंबर वन है, ये क्रिकेट नंबर टू बुक है, ठीक है। तो अभी कैसे दिख रहा है तुमको, MC1C2EH चलेगा, ऐसे चलेगा। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए शेल्फ में, कैसे MC1EH ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या बोलता है, टू बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। कोई भी दो ऐसा बुक है यार, कोई भी दो बुक है, अभी मैंने ऐसा लिख दिया क्रिकेट वन क्रिकेट टू, ऐसा जरूरी थोड़ी है। कोई भी दो बुक होगा, किसी का इंग्लिश और हिस्ट्री का बुक साथ में रखने का है, उसका चॉइस है। कहने का मतलब कोई भी दो स्पेसिफिक बुक। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं टाई मेथड। टाई मेथड, टाई मतलब बांधना, बांधना, टू टाई। टू टाई मतलब बांधना, बांधना मालूम है ना, जूता बांधते हैं ना हम लोग, जूता बांधते हैं, टाई बांधते हैं, उसको बोलते हैं टाई मेथड, ठीक है। ओके, क्या करूंगा मैं ये जो दोनों बुक है इन दोनों बुक को एक साथ में बांध दूंगा, है ना। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं वी विल मेक, चलो स्टार्ट करो लिखना। वी विल मेक वन यूनिट, वन यूनिट ऑफ these two books, we will make one unit of these two books, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों बुक का मैंने एक यूनिट बना दिया, ये दोनों बुक को मैंने एक यूनिट बना दिया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। मैंने इन दोनों को एक एक बॉक्स में डाल दिया, समझे ना। इन दोनों को हमेशा साथ में रखना है, तो मैंने इन दोनों को एक बॉक्स में डाल दिया। तो या बोल सकते हो इन दोनों का मैंने एक यूनिट बना दिया, और बाकी जो हैं, बाकी बचे कितने, बाकी बचे तीन। बाकी कितने बचे, बाकी बचे तीन। वो तीनों का मैंने तीन यूनिट बनाया, ये तीनों का मैंने तीन यूनिट बनाया, देख रहे हो। तो अब मुझे तुम यूनिट गिन के बताओ, अब बुक्स मत गिनो, अब बुक्स मत गिनना, अब यूनिट्स गिनना, ठीक है ना। तो देखो ये वाला तुम्हारा पहला यूनिट, ये वाला पहला यूनिट, ये वाला दूसरा यूनिट, ये वाला तीसरा यूनिट, और ये चौथा यूनिट, देख रहे हो। अब तुम्हारे पास में चार यूनिट है, पहले तुम्हारे पास में पांच बुक्स था। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? मयंक तुमको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है वी विल मेक वन यूनिट ऑफ दीज टू बुक्स एंड थ्री यूनिट्स फॉर अदर थ्री बुक्स, थ्री यूनिट्स फॉर अदर थ्री बुक्स। देखो अभी नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा, तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए बच्चों, चार यूनिट। अभी मैं लिख रहा हूं दीज फोर यूनिट्स, अभी ये जो चार यूनिट है इनको आपस में अरेंज कर दो, ये फोर यूनिट्स को आपस में अरेंज कर दो। दीज फोर यूनिट्स कैन बी अरेंज्ड, can be arranged amongst themselves in 4p4 equal to 4 factorial different ways, 4 factorial different ways। हो गया? यस सर। अच्छा देखो, जब तुम ये चार यूनिट को आपस में अरेंज करोगे तो तुम जानते हो क्या होगा। अब ये होगा कि जहां पर भी ये वाला यूनिट जाएगा, मेरे दोनों क्रिकेट के बुक्स साथ में होंगे, ये दोनों क्रिकेट के बुक्स जो हैं वो साथ में ही होंगे, ये दोनों।
काम हो गया। ओके, अच्छा बोलो। अब मैं पूछ रहा हूं, अब मेरा क्वेश्चन है तुमसे। मैंने ऐसे अरेंजमेंट किया कि दोनों क्रिकेट के बुक साथ में ही हैं, तो मैं यहां तक पहुंचा हूं 4P4 तक। अब मुझे आपसे पूछना है कि क्या क्या काम खत्म हो गया? मैं बोल दूं द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। इज द आंसर 24? बोलो। दिशांक, सर वो दिशांक मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आंसर 24 है दिशांक? हाँ सर। यस, दिशांक ने बोल रहा है 24। हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट अग्री टू दिशांक? वेदांग, यू अग्री टू दिशांक? इज द आंसर 24? अरेंजमेंट्स हो गया पूरा? Yes, sir. Okay, very good. What about you, Shravan? Do you agree to Dishank and Vedant? यस सर। Yes, sir. He also agrees. What about you, Raj Singh? Yes, sir. Okay, Raj Singh also agrees. Very good. So, Mayank, do you agree to them? यस सर। Okay. Now, Rayansh, you say, do you agree? यस सर। Okay, fine. Sucheta, what about you? Sucheta, you Yes, agree to sir. them? Yes, sir. You also said yes, sir. Now two students are left. I go to Navya. Navya, you agree to them? Yes or no? No, sir. No, you said no. Why no? Why no? Navya, why no? Because the two books can be arranged among themselves also. वेरी गुड। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। ध्यान से सुनो, इसीलिए होमवर्क करना होता है। सर जो भड़कते हैं वो ऐसे ही नहीं भड़कते हैं, होमवर्क इसीलिए करना होता है। सब लोग ध्यान से देखो, इधर देखो, सब लोग ध्यान से देखो। देखो उन्होंने क्या बोला है कि दो बुक हमेशा साथ में रहनी चाहिए। ठीक है भाई, तुमने दो बुक क्रिकेट का ले लिया, एक C1 एक C2। अब तुम्हारे हिसाब से ये जो अरेंजमेंट है इसमें क्या होगा? ये दोनों बुक हमेशा साथ में रहेगी। लेकिन मुझे ये बताओ, M C1 C2 HE, M HE C1 C2, C1 C2 MHE, तुम जो बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमेशा C1 और C2 साथ में है, लेकिन C1 हमेशा C2 के पहले है। मुझे ये बताओ, क्या क्या ये अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है? M C2 C1 HE, M HE MHE C2 C1, बोलो ऐसे हो सकता है? यस, ऐसे भी हो सकता है। वो जो दोनों बुक्स हैं वो दोनों बुक्स भी आपस में अरेंज हो सकती है, वो दोनों बुक्स भी आपस में अरेंज हो सकती है। तो टाई मेथड में हमेशा इस बात का ख्याल रखना, हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि जिन ऑब्जेक्ट्स को तुमने टुगेदर टाई किया हुआ है उन ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में अरेंज करवाना है, उन ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में अरेंज करवाना है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? फर्दर द टू बुक्स कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड अमंग्स देमसेल्व्स। तो देखो यहां पर जो भी तुमने किया वो बराबर किया था, लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा? फर्दर, देखो फर्दर टू बुक्स can also be arranged amongst themselves in 2P2 equal to 2 factorial different ways। और अब तुम्हारा काम खत्म हो गया।
ये देखो ये 4 फैक्टोरियल आ गया और ये 2 फैक्टोरियल आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा therefore by fundamental principle of counting, the required number of arrangements equals to 4 factorial into 2 factorial, that is 24 into 2, that is equal to 48. अभी जैसे कि जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा ना, है ना, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, ये तो लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है, इसके पहले वाला जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वो लेक्चर का जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.25 घंटा जो भी होगा, वो लेक्चर को आपको देखना है, और वो लेक्चर देखने के बाद में पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में सारे क्वेश्चंस तो कॉपी कर रहे हो, आपको पूरा जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चंस फिर से एक बार सॉल्व कर लेना है, ओके। अभी थर्ड देखो, 16th का थर्ड क्या बोल रहा है, टू बुक्स आर नेवर टुगेदर। थर्ड इज टू बुक्स आर never together. They're talking about two specific books which are never together. Okay. अब जैसे कि देखो, मेरे पास में 2 क्रिकेट के बुक्स थे, यस सर, तो वो दोनों बुक को मैं हमेशा साथ में रखता था, यस सर। अब इसमें से कोई जो बुक है वो मैं साथ में नहीं रखना चाहता हूं, ओके। तो अब मैं साथ में नहीं रखना चाहता हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैंने देखा कि जो भी लोग मेरे शेल्फ में आते हैं, यहाँ पे कोई भी लोग जो मेरे शेल्फ को देखते हैं और जब उनको बुक्स निकालनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो दोनों बुक है दोनों साथ में निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आजू बाजू में रखा है ना, तो उनको दिख जाता है, अरे ये भी क्रिकेट की बुक है और ये भी क्रिकेट की बुक है, तो वो लोग दोनों साथ में निकाल लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि दोनों बुक साथ में निकाल लें, ऑब्वियसली ना, एक पढ़ो बाद में पढ़ के हो गया तो दूसरा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने कोशिश किया है कि ये दोनों बुक साथ में रखूंगा ही नहीं, ये दोनों मैं कभी साथ में नहीं रखूंगा, ये हमेशा अलग अलग होना चाहिए। अब मुझे अरेंज करना है जिसमें ये दोनों बुक्स हमेशा अलग अलग हैं, ओके। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, पहले वाला अरेंजमेंट जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आंसर आया था 120 अरेंजमेंट था। दूसरा वाला अरेंजमेंट जिसमें कोई भी 2 बुक हमेशा साथ में ही थी, उसका आंसर आया था 48। अब क्या है, अब वो जो दोनों बुक है वो दोनों बुक कभी भी साथ में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है गैप मेथड। कौन सा मेथड? गैप का मतलब तो समझते हो ना, गैप मतलब खाली जगह,
खाली जगह, ठीक है ना। तो देखो मैं अब क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, वो दोनों बुक जिनको आपको अरेंज करना था, एक स्टूडेंट कौन निकल गया मीटिंग से? श्रवण। ओके, देखो यहां पे, देखो वो दोनों बुक जिनको हमको साथ में रखना है, सॉरी कभी साथ में नहीं होना चाहिए, वो दोनों बुक जिनको कभी साथ में नहीं होना चाहिए, टू बुक्स आर नेवर टुगेदर, उनको भूल जाओ, ठीक है। तो अभी बच क्या गया, द अदर 3 बुक्स, ठीक है। सो हियर आई विल राइट let the 2 books, I'll have to give some name now. Let the 2 books which are never together, be B1 and B2. 2 books which are never together be B1 and B2. कौन सा 2 बुक है वो? B1 और B2 है, ठीक है। ये दोनों बुक को कभी साथ में नहीं रखना है, ओके। तो क्या करने का, इन दोनों बुक को भूल जाओ, ऐसा सोचो ये दोनों बुक है ही नहीं। अरे सर ऐसे कैसे करें? अरे करो ना, देखो इधर, अब मैं क्या बोलता हूं, देखो द रिमेनिंग 3 बुक्स, ध्यान से देखो इधर, जो लोग लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे उनको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा, बाकी लोग तो ठीक है उनको मालूम है सब। द रिमेनिंग 3 बुक्स can be arranged amongst themselves in 3p3 equal to 3 factorial equal to 6 different ways. ये मैंने क्या किया मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखो। Rajvansh, your video is off. What should I understand? देखो यहां पर ये जो 3 बुक है ना, कौन सी? B3, B4, B5, ओके। ये तीनों को मैंने आपस में अरेंज कर दिया, तो कितना वेज मिला मुझे? 6 डिफरेंट वेज, मतलब B3, B4, B5, B3, B5, B4, B4, B3, B5, B4, B5, B3, B5, B3, B4, B5, B4, B3, ऐसे 6 अरेंजमेंट मिला, ठीक है ना सर। लेकिन अपना काम तो हुआ नहीं, बात एकदम बराबर कही तुमने, अपना काम अभी हुआ नहीं है। ये देखो अब अपना काम होगा। ये जो 3 बुक है इनके आजू बाजू राजू 4 जगह है, देख रहे हो? इनके आजू बाजू में 4 ऐसी जगह है जो कि मैंने एक्स से मार्क किया है। इनके कितनी जगह है? 4। अगर मैंने ये दोनों बुक को, ध्यान से देखो, अगर मैंने इन दोनों बुक को ये 4 जगह पे अरेंज किया तो क्या होगा? तो ये दोनों बुक कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। जैसे कि देखो B1 B2 है ना, अगर मैंने यहां पे B1 और यहां पे B2 रख दिया, मतलब वो 4 में से किसी भी 2 जगह पे, तो अब जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? अब जो अरेंजमेंट होगा वो होगा B1 B3 B2 B4 B5। देखा? देखो B1 B2 साथ में नहीं है,
कहने का मतलब कि जो B1 और B2 दो बुक है उसको तुमको किसी भी 4 जगह पे अरेंज करना है। ये 4 जगह पे, ये 4 जगह पे अरेंज करना है। ओके, तो B1 के लिए कितनी जगह अवेलेबल है? 4, और B2 के लिए 3। B1 के लिए 4 जगह अवेलेबल है, 1 2 3। ये 4 में से B1 कहीं भी जा सकता है? यस, B1 इन 4 में से कहीं भी जा सकता है। समझो तुमने यहां पर डाल दिया, तो अब तो 3 ही जगह बची ना B2 के लिए। यस, तो B1 और B2 ये 4 जगह पे कितने वेज में आ सकते हैं? 4p2। 4 जगह है और 2 को अरेंज करना है। इट कैन बी डन इन 4p2 वेज। ओके, तो मैं देखो अब इसके आगे का आंसर मैं कैसे लिखता हूं, ये तुम्हें सीखना है, ये तुम्हें सीखना है। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में भी यही सब टाइप के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एल्गोरिदम वाला। द वाल्स आर ऑलवेज टुगेदर, नो टू वाल्स आर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फोटोग्राफ वाला। ओके, द टू गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हिस्ट्री वाला, y एंड t ऑलवेज टुगेदर, y इज नेक्स्ट टू t। जबरदस्त, तुम्हें उसी समय ये प्रॉब्लम करना चाहिए था, लेकिन तुम लोग करता ही नहीं है। वही तो दिक्कत है ना भाई, करता ही नहीं है तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व। देखो यहां, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, बिसाइड दीज 3 बुक्स, अब मैं आंसर लिखता हूं। देखो मैं लिखता हूं, बिसाइड दीज 3 बुक्स there are 4 places, blank places, blank. There are 4 blank places marked by X, marked by X. देखो मैं लिखता हूं, if the two books B1 and B2 are arranged in any two places from these 4 places, then these two books will never be together. They will never be together. See what I write further. I will write, this can be done I'll write here, this can be done in 4p2, that is 4 into 3. 4p2 is 4 into 3, याद रखना। 4 से स्टार्ट करना, 2 नंबर नीचे जाना है। 4p3, that is 4 into 3, that is 12 ways. हो गया, खत्म। So the answer is 6 into 12, that is 72. Please write the final answer. Write the final answers.
So here the final answer, what you will write, therefore by fundamental principle of counting, the total number of required arrangements will be 6 into 12, that is 72 different ways. Okay, 72 different ways at alternate places. ओके देखो मैं कैसे लिखता हूं इसको 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. देखो मैं कैसे लिखता हूं. देयर आर 6 places. There are 6 places. Okay. In order to have arrangements where boys and girls are at alternate places, we can have 2 independent cases. अभी देखो इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट केस आएगा. केस 1 arrangement starting with a boy. क्या होगा मेरे बच्चों? देखो ये जब तुम किसी लड़के के साथ में अरेंजमेंट स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 तो क्या होगा? देखो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल. ठीक है. ये कितना हो गया? नंबर 1 2 3 4 5 और ये है तुम्हारा नंबर 6. ठीक है. So when you are starting the arrangement with a boy, remember the 3 boys will occupy the odd places. They will occupy the odd places. So 3 boys in 3 odd places can be arranged in how many ways? 3 factorial ways. देखो इन तीनों लड़कों को समझो ये बॉय 1 है, बॉय 2 है, बॉय 3 है. इन तीनों लड़कों को इन्हीं 3 जगह पे आना है, तभी ऑल्टरनेट होगा. मतलब देखो B1 B2 B3 ऐसे हो सकता है, मतलब 1 3 और 5 पे ऐसे भी हो सकता है. B2 B1 B3 1 पे B2 3 पे B1 और 5 पे B3 ऐसे हो सकता है. समझ में आया क्या? लेकिन यही 3 और जगह पे होगा. तो इसको हम कैसे लिखूंगा अभी हम आपको बताऊंगा. तो देखो मैं इसको लिखता हूं. The 3 boys, that is 3 boys can be arranged at 3 odd places in 3p3 equals to 3 factorial ways. ठीक है भैया? Yes. That is 6 ways. मुझे ये बताओ कि जब मुझे एक लड़के से अरेंजमेंट स्टार्ट करना था तो मैंने ऐसे किया. क्या मेरा काम खत्म हो गया? ये वाला अरेंजमेंट श्रवण, लड़के से स्टार्ट जो करना था अरेंजमेंट वो हो गया. अभी लड़की से स्टार्ट करूं अरेंजमेंट? यस सर. यस सर बोलता है. गलत. अरे भाई अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे लड़कों को ही अरेंज किया है.
अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ लड़कों को ही अरेंज किया है, बात समझ में आ रही है क्या? इन लड़कियों के बारे में तो तुमने बात ही नहीं किया है क्या? यस सर बोलते हो। ये जो 6 वेज तुमको मिला है, ये सिर्फ लड़कों को अभी तक अरेंज किया है। तुम लोग इस टॉपिक को हल्के में लेने का जरा भी ये मत करना, चांस मत लेना हल्के में। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे बोलूंगा द रिमेनिंग 3 गर्ल्स, द रिमेनिंग 3 girls can be arranged at remaining even places in 3p3 equals to 3 factorial ways, that is equal to 6. ये हुई ना बात? अब हो गया कंप्लीट। लड़के भी अरेंज, लड़कियां भी अरेंज, जितने भी थे सारे अरेंज, और वो तीनों और वो 6 के 6 ऑल्टरनेटली पोजिशनड है। अब मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर द टोटल, देयरफॉर द नम टोटल नहीं बोलना, अभी बाकी है। देयरफॉर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स with a boy in the beginning is what? 6 into 6, that is equal to 36. Beginning is 6 into 6, 36. अब आएगा केस 2। अब इसमें आएगा केस 2। केस 2 क्या होगा बोलो? केस 2 क्या होगा बोलो? अरेंजमेंट स्टार्टिंग विथ अ गर्ल। अब उधर क्या होगा? जी बी वैसा ही छोड़ेगा, और आंसर फिर से 36 आएगा। 36 कितना होता है? वो दोनों ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? या तो उस तरह से, नहीं तो इस तरह से, बीच में है और, तो क्या होगा? ऐड होगा। 36 प्लस 36 72 होगा। चलो इसको कॉपी करो फटाफट, इसको कॉपी करो। So the case 2 we will write arrangement starting with a goal. We will write the arrangement starting with a goal, and in that, see the 6 positions you have GB. So you will say the three goals can be arranged at odd places in how many ways? 3p3 equals to 3 factorial equals to 6 ways. Then you will say the remaining 3 boys can be arranged at 3 even places. See, even places. It's again 3p3. So that is again 3 factorial equals to 6. So by fundamental principle of counting, the total number of arrangement these ways will be 6 into 6, 36. So now what is the total number of arrangements? All final answer. When the girls and the boys are placed alternately, it is 36 plus 36. See, these are two independent cases. You have or in between. So 36 plus 36 equals to 72 is the final answer. This you have to write. Okay. Now we are left with just one part here, and that's they say all boys sit together. Now you understand, when all boys are sit together, what does it mean? Like you remember the problem where we had the 2 books are together. What did you do? You went for the tie method. So when they say all boys sit together, when they say the boys sit together, what you will say? B1, B2 and B3. These are the boys. You will make them one unit. You see this? The boys are always together. So you will make one unit of these 3 boys. You will make one unit of these 3 boys. And
and you will make 3 units for 3 girls, G1, G2 and G3. Now what? Now don't count 6 students. Don't say that we have 6 students. No, say we have 4 units. We have 4 units. So what we will do, these 4 units we will arrange among themselves. These 4 units will be arranged amongst themselves. Can you say Raj, in how many different ways these 4 units will be arranged among themselves? These 4 units will be arranged amongst themselves in how many different ways? Yes. Four. How many? 3p4. क्या बोल रहा है? 3p4 क्या होता है यार? 4 units will be arranged amongst themselves in 4p4. 4p4. That is 4 factorial. That is 24 ways. और जो उन्होंने बोला था वो काम हो गया? मयंक बोलो, आर यू सेटिस्फाइड? हमने कर दिया अरेंजमेंट? यस नो बोलो। नो सर। क्यों, क्या रह गया अभी? सर अभी वो जो यूनिट है वो खुद से ही अरेंज हो सकता है। वो यूनिट नहीं, ये जो अरेंजमेंट है, ये देखो, ये ध्यान से सुनो राज, तुम भी सुनो। ये जो 24 अरेंजमेंट तुमको मिला है, समझो मैं 24 अरेंजमेंट यहाँ पे स्टैक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 24 अरेंजमेंट। ये जो 24 अरेंजमेंट है ना, इसमें तुम देखोगे कि ये जितने भी अरेंजमेंट हैं, इनमें सब में लड़के तो साथ में हैं। जैसे कि देखो G1 G2, बाद में B1 B2 B3 G3, देख रहे हो? मतलब ये भी एक अरेंजमेंट होगा। ये 24 में से एक अरेंजमेंट ये भी है। यहाँ पे देखो एक अरेंजमेंट इधर भी है, G1 B1 B2 B3 G2 G3, देख रहे हो? यहाँ पर भी ये तीनों लड़के साथ में हैं। देखो इसमें से ना एक अरेंजमेंट इधर वाला देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, G1 G2 B1 B2 B3, सॉरी G1 G3 B1 B2 B3 G2, देखो इसमें भी ये तीनों लड़के साथ में हैं। तो ये जो 24 अरेंजमेंट है, इसमें ये तीनों लड़के साथ में हैं। लेकिन ये तीनों लड़के जो हैं वो हमेशा B1 B2 B3 इसी ऑर्डर में हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना भाई। ये जो B1 B2 B3 है, जरूरी है क्या कि तीनों लड़के हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ये भी तो आपस में अरेंज हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, ये 24 अरेंजमेंट जो है, ये 24 वो अरेंजमेंट्स हैं जिसमें ये तीनों लड़के इस तरह से हैं। मतलब जब ध्यान से सुनो, कितना इंटरेस्टिंग है, देखो अभी तुरंत दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जब इन तीनों बच्चों को ऐसे रखा है तुमने, तो 24 मिल रहा है। जब इन तीनों को तुमने ऐसे रखा हुआ है B1 B2 B3, तो 24 मिल रहा है। तो इसका मतलब जब B1 B3 B2 होगा तो उसके लिए भी 24 मिलेगा। जब B3 B2 B1 होगा तो उसके लिए भी 24 मिलेगा। जब B3 B1 B2 होगा उसके लिए भी 24 मिलेगा। मतलब कि ये जब आपस में अरेंज होंगे तो हर एक के लिए 24 मिलेगा। तो मतलब ये जितना भी देंगे सबको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक के लिए 24 तो बाकियों के लिए भी 24। आर यू गेटिंग इट? बोलो, आर यू गेटिंग इट? तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर, देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे फर्दर these three boys can also be arranged amongst themselves in 3p3 equal to 6 ways. 3 factorial, that is 6 ways. 3p3 3 factorial equal to 6 ways. अब मल्टीप्लाई कर दो, इनका 6 आया ना, तो हर एक के लिए 24 है, तो 6 के लिए कितना होगा? 6 into 24, the answer is 144.
समझ में आया? Yes. दैट्स इट। ये आंसर आपको खुद लिखना है। मैं पहले वाला वीडियो शेयर कर रहा हूं, सब लोग उसको ध्यान से देखो पहले। चलो बाय।